بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع اور آج کے عنوان جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم۔ علم کی جہاں پر میں بات کروں تو بتقاضۂ مسلمان علم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر علم کی فضیلت کو اجاگر کیا اور یہاں تک حدیث موجود ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں کہیں جانا پڑے، پھر علم کی راہ میں نکلنے والا جہاد کے برابر۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ میں آج ان سے ہٹ کر بھی بات کروں تو یوں کہوں کہ جب سے دنیا بنی، جب سے دنیا وجود میں آئی، اس دور سے جتنے بھی انبیاء آئے، تمام تر انبیاء نے اپنی قوموں کو جس کی طرف ترغیب دی، جس کی طرف کہا، وہ تھا علم کے علم حاصل کیجیے۔ اس کے علاوہ ان مذاہب سے ہٹ کر اب دنیا کے کسی بھی مذہب کی طرف بڑھ، کسی بھی مذہب کی طرف بڑھ، ہر مذہب یہی کہتا ہے جناب علم حاصل کیجیے۔ بلکہ یوں کہوں کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں علم حاصل کیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے، جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو علم آپ کے لیے وہ تمام تر دروازے، عقل کے وہ تمام تر دریچے کھول دیتا ہے جن کی بدولت آپ کو حقیقت بھی ملتی ہے، معرفت بھی ملتی ہے اور سچائی بھی ملتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیات میں بہت ساری جگہوں پہ مفہوم ہے، اور کہ پس تم تحقیق کرو، بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے تو علم کے بعد آپ کی جو ہے عقل جو ہے اسے وہ شعور ملے گا کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی حقیقت سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو علم کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اور علم کے لیے میں دوسری چیز بتاتا چلوں، علم کے لیے ضروری نہیں ہے جناب کہ آپ اسکول میں داخل ہو اور اس میں داخل ہونے کے بعد 4، 8، 9، 10 کلاسز پڑھیں اور کہیں جی میں علم حاصل کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے بھی علم سکھایا جاتا ہے، جسے ہم مدارس کا علم بولتے ہیں۔ مدارس سے پہلے بھی علم سکھایا جاتا ہے۔ علم حقیقت میں ہے کیا؟ علم وہ ماں کی گود سے آپ جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سارا علم کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پہ ایک ہمارے معاشرے میں کتنے عجیب سا انداز پیدا ہو، وہ انداز پیدا یہ ہو چکا ہے جی اس نے جو ہے ماسٹرز کر لیا ہے، ایم فل کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہے، یہی عالم ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، اور اسی نے سب کچھ کرنا ہے اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اور اس کی وہ عمر قید کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے جی اب اس کی سیکھنے کی عمر نہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ مکمل غلط۔ وہ کہا جاتا ہے کہ مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی جو ہے نا مٹی تک علم حاصل کیجیے۔ وہ علم ہے کیا کہ آپ ہر عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ساری پڑھن دی عمر نہیں رہی، ایسے کی کریں؟ تو بھائی حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے تو آپ کسی بھی زندگی کے حصے میں علم حاصل کر بھی سکتے ہیں۔ اور جب آپ علم حاصل کریں تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں نفع دے، اور نفع بخش علم جب آپ لیں گے تو پھر آپ کا دنیا میں بھی بھلا ہوگا، آخرت میں بھی بھلا ہوگا۔ اور یہ علم ہی کی بدولت ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب علم ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ ایک عمر کے دوسرے حصے میں آ چکے ہیں اور آپ کو علم چاہیے جی انجینئرنگ کا علم چاہیے۔ صرف انجینئرنگ کا علم نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے علم ہیں۔ اب جس بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہے، مثال دیتا ہوں جی، ایک شخص کپڑے کی صنعت سے وابستہ ہے اور کپڑے سے تعلق رکھتا ہے اور کپڑے کا بزنس کر رہا ہے اور اس سوچ سے کر رہا تھا میرا باپ یہ کرتا ہے میں اسی پہ یہ کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنے کام کو جدید کرنا چاہتے ہیں، نیا کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کیجیے۔ علم کیا ہے؟ اس کپڑے کے اوپر ریسرچ شروع کیجیے، اس کپڑے کی لیبارٹریز والوں کو ملیے، یہ کپڑا داغے سے بنا، داغے میں کیا تھا، پھر کلر کیسے آیا، ساری چیزوں کا علم حاصل کیجیے۔ یہ بھی علم۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور عام فہم مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اینڈرائڈ موبائل ہر جگہ عام ہو چکی ہے، ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ہر شخص یوز کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسے یوز کرتے ہوئے اس نے اپنے موبائل میں واٹس ایپ اور مختلف ایپس بھی رکھنے ہیں۔ وہ شاپ والے کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے بھائی اس میں یہ ایپس کر دو، یہ میں نے یوز کرنے، پھر میرے اکاؤنٹ بنا دو۔ چلیں ایک مجبوری تھی آپ نے کہا، لیکن نیکسٹ آپ اس پہ کوشش کیجیے، کچھ نہیں ہونے والا۔ کوشش کیجیے جو شخص وہ بنا سکتا تھا وہ آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ سیکھیے، عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، اس کا استعمال سیکھیے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی ہوتا ہے جی، ہم جس بھی چیز کو اٹھاتے ہیں اور ڈائریکٹ کر دیتے ہیں
जनाब ये चीज़ जो है ना शैतानी आला है, ये गलत ऐसे फेंक दिया जाए नहीं। मैं एक बुजुर्गों का एक कॉल पढ़ रहा था कि आप उस वक्त तक नजासत से नहीं बच सकते जब तक आप नजासत को पहचान लेना हो। इसलिए किसी भी बुराई से बचने के लिए जरूरी है बुराई को पहचाना है। हमारे यहाँ माशरे में होता क्या है, बुराई को पहचाना नहीं जाता, बल्कि बुराई को जो है ना पहचानने की भी क्या, बल्कि दूर से देखने को उठा के फेंक दिया जाता है। जैसे मुख्तलिफ चीजें, टिकटॉक है, मुख्तलिफ सारे ऐप्स आ रहे हैं, तो उस पर यही कहा जा रहा है भाई ये बेहयाई है। हाँ, मेजोरिटी उस पर वही है, लेकिन हमने उसका मुकाबला कैसे करना है, हमने उसे इस्तेमाल कैसे करना है, हमने उसे रोकना कैसे है। अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है, हमने उसे रिपोर्ट करके ब्लॉक कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। तो ये सारी चीजें, उसकी स्ट्राइक्स कैसे भेजनी है, ये चीजें सीखनी शुरू करें। जो भी शख्स इस्तेमाल कर रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये तो बेहयाई है, इसे मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये है आपने वो प्लेटफॉर्म खुला छोड़ दिया उस शख्स के लिए जो शख्स जो करना चाहता था। लेकिन इसके बरक्स दो ऑप्शन आपके पास मौजूद। पहला ऑप्शन, आप सीखिए, सीखने के बाद उस पर अच्छी चीज को फैलाइए, अच्छी बात को आम कीजिए। अगर कोई बेहयाई को फैला रहा है, तुम आप उससे ज्यादा अच्छाई को फैलाइए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए। आपके पास ज्यादा सीख चुके, अब स्ट्राइक्स भेजिए, उस पे जो है उसे खत्म करने की जो है क्या क्या तरीके होंगे उसकी तरफ बढ़िए, तो यकीनन आपको भला होगा। वो उम्र के किसी भी हिस्से में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आप वो सारा दिन लोग बैठे हैं जी ऊपर को जा रहे हैं, फिर भाई यकीनन आप ऊपर को जा रहे हैं जी, देख रहे हैं जी फ्रेंड लिस्ट में लोग क्या क्या कर रहे हैं, और करने के बाद अच्छा भी ये बहुत सियाना आदमी है जो ये करता रहता है, वीडियो बना लेता है, ये करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? अब वो काम कीजिए, अब उसे सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैठ जाइए क्लासेस में, अब थोड़ा सा जिसके पास बैठे, भाई व्हाट्सएप अकाउंट अगर नहीं बनाना आता, बनता कैसे, ये आगे वाला काम कैसे होता है, ये कैसे होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू करेंगे। वो सिर्फ आप अपनी जात तक नहीं, फिर वो जो है ना आगे भी तकसीम करते हैं। यानी आप उसी कम्युनिटी में बैठ रहे हैं कि जिसमें बेशतर को नहीं आता, तभी तो आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं, तो आप उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे फैलाना शुरू कीजिए। ये भी इल्म फैलाने का है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का भी एक फरमान कि जो मेरी एक हदीस सुने वो आगे पहुंचाए। तो ये ही तर्ज अमल हर इल्म की है, जो आप सीखे उसे आगे पहुंचाए। और सिर्फ किसी एक चीज का नहीं, हर चीजों का इल्म सीखिए, जो जिस फील्ड में है। कोई कपड़े की फील्ड में है, उसका सीखिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैकेनिक्स आपने बहुत देखे होंगे, जिसे मोटर मैकेनिक कहते हैं, या आप कह लें कि जी गाड़ियों का मैकेनिक। हर शहर में सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि एक मैकेनिक के पास रश बहुत होता है और वो रश नहीं खत्म होता, और हर बंदा क्या कह रहा होता है, उस मैकेनिक को चलिए, उस सियाना मैकेनिक। वो क्या सियाना होता है? सियाना यही होता है कि वो इंजन को बड़े अच्छे अंदाज में समझ रहा होता है और उसे कर रहा होता है। लेकिन इसके बरक्स पीछे वाले जितने होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? वो फेल इसलिए हो जाता है जो मेरे उस्ताद ने सिखाया था मैं वही करता आ रहा हूँ, मैं वही करता चला जा रहा हूँ, और वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो नया मैकेनिक होता है ना, जो खुद से करता है, फिर नई गाड़ी लेके उसके पास जाते हैं, भाई इस इंजन में डिफरेंस आ गया है, अब ये पुराने मैकेनिक का काम नहीं है, नए के पास चले जाते। हकीकत क्या है, वो रिसर्च कर रहा है, उस पर सीख रहा है। तो इल्म हासिल कीजिए, सीखिए, जितना आप जिस भी उम्र के हिस्से में सीखेंगे वो आपको नफा देगा। मिसाल देता हूँ कि आज के इस दौरे पुरफितन में हर शख्स बीमार है, हर शख्स मुख्तलिफ बीमारियों में घिरा हुआ है, लेकिन होता क्या है, हम अपनी जो है डॉक्टर्स मेडिसिन लिख के देता है, हम उस हिस्ट्री को उठा के नहीं पढ़ सकते कि ये क्यों क्या लिखते थे। फिर उसके बाद हमारा आलमी ये होता है, हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो आगे रखते हैं, मेडिसिन लेते हैं, घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसी मेडिसिन को बगैर देखे, वो हमने रंग लगाया, चाहे नीली या पीली या लाल है, उसे खाओ। ये तरीका नहीं होगा। अब पहले देखें उसमें लिखी कौन सी मेडिसिन, ये मेडिसिन किस किस चीज की है। और बाद वक़्त मैं उसकी एक और चीज बताता हूँ आपको। जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो आगे से मेडिकल स्टोर वाला कहते हैं, अच्छा जी डॉक्टर साहब ने आ कंपनी की, ये कंपनी की लिख के दी, आप इसे छोड़ें, ये इसका अपोजिट कंपनी की ले लें। कभी आप उसकी मान लेते हैं, कभी आप उसकी नहीं मानते, और पूरा शहर घूमते और वो नहीं मिलती। तो इसके बरक्स अगर आपके पास नॉलेज हो, आप उसी टाइम से रिसर्च करें और चेक करें कि यही फार्मूला इसी मेडिसिन में है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक दफा उसे चेक करें, वो चेक करेंगे, वो आपको फायदा देगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में लाना शुरू करें तो हमारी जिंदगी तब्दील होना शुरू होगी। हर शख्स के पास मोबाइल मौजूद है,
आसानियाँ बहुत ज़्यादा है लेकिन हम फ़ायदा नहीं उठाते। हम फ़ायदा वो मख़सूस किस्म का उठाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। हम उसी के बरक्स वही मेडिसिन्स लिख के दिए हैं, हम उसी मेडिसिन्स के फ़ॉर्मूले को या उसी चीज़ों को सर्च करके अपने उसके ऊपर जो है चेक करें और चेक करने के बाद देखें कि ये मुझे इश्यूज़ हैं और ये डॉक्टर साहब ने इसके बरक्स मेडिसिन दी हैं, ठीक है। नहीं तो बाद औक़ात ऐसा होता है रश में मेडिसिन एक आध मेडिसिन ऊपर नीचे भी हो जाए, हम बाद में डॉक्टर साहब को कह रहे थे डॉक्टर साहब आप पत्ते थी और ये मेडिसिन खा रहे थे इसका फ़ायदा नहीं है। वो कहते नहीं ये गलत आ गई है। तो ये होता क्या है कि हम बिन देखे चलते हैं। बिन देखे क्या चलते हैं? हम बिन देखे एतमाद करते हैं और बिन देखे एतमाद करने के बाद हम एक माह मेडिसिन खाने के बाद पूरे शहर में ढंढोरा पीटते होते हैं। वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसे छोड़ो, उसके पास चले जाओ, फिर उसके पास जाते हैं, फिर उसके पास चले जाओ। हकीकत में मसला ये होता है हम खुद देखते ही नहीं। यकीनन वो दौर था कि जी हमारे पास इस तरह फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब तो रिसर्च करने के लिए जी डिक्शनरी लाओ, चीज़ें लाओ, फिर देखो। अब तो आपके पास मौजूद है, डॉक्टर्स मेडिसिन लिख के दे रहा है, आप उसी टाइम नेट से रिसर्च कर सकते हैं। इस रिसर्च को सीखें। जब हर बंदा मेडिसिन तो खानी है, सिर्फ 10 मिनट अगर आप इस पे देते हैं, एक हफ्ते में या 10 दिन बाद चेकअप के बाद कोई एक मेडिसिन चेंज होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और जब भी आप इस किस्म की चीज़ पे आएँ तो आप इसे रिसर्च करें। आपको फेक भी आपके सामने आ जाएंगे और जो है ओरिजिनल भी आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको बाजार से मेडिसिन से लेके कोई भी चीज़ लेते हुए ओरिजिनल और जो है ना जाली का आसानी से पता चल जाएगा। हर चीज़ के, हर ब्रांड के 2 नहीं मैं कहूँगा 8-8, 10-10 कापियाँ मार्केट में मौजूद हैं। तो हर शख्स जब पैसे देता है वो यही चाहता है कि मुझे ओरिजिनल मिले, लेकिन होता क्या है फिर वो लेके ओरिजिनल नहीं जाता। उसकी वजह यही होती है कि हम चीज़ को चेक ही नहीं करते। बल्कि आजकल तो वो बड़ा एक चीज़ फेम हो भी रही है कि जनाब अब कोई भी प्रोडक्ट तो उसके बैक का लेबल लाजमी है। हमारे यहाँ होता है एक्सपायरी भी नहीं पढ़ते ले जाते हैं और जब हाफ यूज़ हो जाती है फिर देख इसकी तो एक्सपायरी जो गुजर चुकी थी। इसके बरक्स अगर हम लेने से पहले इसे पढ़ें तो ना हमारे वो लड़ाइयाँ झगड़े हों जो मार्ट्स और स्टोर्स पे होते हैं किसी भी जगह पे, और ना हमें किसी परेशानी का सामना हो और ना हमारे पैसे का ज़िया हो। इसलिए जब भी चीज़ खरीदें तो इसे पढ़ के खरीदें। जब आप पढ़ने की तरफ, आदत की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए इल्म और रिसर्च और वो नए-नए रास्ते ओपन होते जाएंगे। इसलिए फुल स्टॉप अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में ना लगाएं, बल्कि इल्म की तरफ बढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपका और मेरा हामी और नासिर। इख्तिताम पे मैं यूँ कहूँगा कि हमारे दोस्त अहबाब जिनको भी किसी बात को कोई सवाल उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल लाज़मी कीजिए। आप सवाल करेंगे यकीनन हमें हमारे इल्म में भी इज़ाफ़ा होगा और आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा होगा। वस्सलाम।